ओके सो हम लोग कहाँ पर थे कि ये पढ़ रहे थे यूथेरियंस के बारे में। ओके यूथेरियंस में भी प्राइमेट्स, ओके और प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन रह गया था कि एक्स्ट्रा बोन कौन सा है इन ह्यूमंस। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि फुल्ली अपोजिबल थंब इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्स। ओके fully developed thumbs, or you can say the characteristic of humans, fully developed opposable thumb. Humans से पहले there is opposable thumb but not fully developed opposable thumb. Fully developed opposable thumb means you can touch the tip of your fingers with your thumb, with your ventral side of your thumb. You can touch the ventral side of टिप ऑफ योर फिंगर्स। ठीक है, टिप पर गौर कीजिए। टिप को ह्यूमंस टच कर सकते हैं बट गोरिल्लास कैन नॉट टच देयर टिप्स, मंकीज कैन नॉट टच, गिबॉन्स कैन नॉट टच, और उससे भी पहले लेमर्स एंड लॉरिसेस में और भी कम हो जाता है उनका मूवमेंट। सो ये कैसे संभव हुआ? देखिए दिस इज, ये फिगर का आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है? ओके सो इसमें आप यू कैन नोटिस यस actually the bones in your palm, bones in your this thing in your palm is like that. It can be divided into carpal region, metacarpal region and then phalanges. ठीक है, तो ह्यूमंस में जो है आफ्टर दिस metacarpals you can notice there are 3 bones, 1 2 3 in each of the digits, including thumb. Sorry, not including thumb, in 4 fingers. Rest of the fingers excluding thumb, you can notice that there are 3 bones: first phalange, second phalange and third phalange. Can you see this? Can you see? Yes, sir. 1, Yes, sir. this is the metacarpal. Yes. 1, 2 and 3 in all these 4 fingers. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. So these are the phalanges in your finger. In gorilla's hand, rest of the fingers, the 4 fingers, are having the same bone structure in comparison to human. 3 phalanges are there. ठीक है, ये हो गया आपका मेटाकार्पल। उसके बाद गिनिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बट in gorilla's hand, you can notice that one of the bone here, you can notice here 1 2 3, this is the metacarpal region, and 2 phalanges are there in the human hand, 1 and 2. Here also you can notice that 2 phalanges there, 1 and 2, but the metacarpal bone is highly reduced in this. Or you can say the third phalange is in the short form. No, metacarpal is like this in a round shape in gorilla's hand. So because of this difference, you can articulate your thumb more than the gorilla. Okay, so this is the difference. Is it clear to you? Yes, Kino, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अब हम आते हैं ह्यूमंस पर। तो ह्यूमंस को स्टडी करने से पहले आप प्राइमेट का क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन कहां पर बिलोंग कर रहा है। सो इज दिस पिक्चर क्लियर टू यू? साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Okay. यहाँ पर एक कलर्ड लाइंस है। If you can see and notice, the color line you can see here. Okay, green color है, yellow color है, blue color है, then dark green is there, and then red color is there. Can you notice the difference? Is it clear? Yes, sir. Different colors. Okay, so if you notice this color, these colors represent different lineages in the primates. So light green color, there are two suborders, Strepsirrhini and Haplorhini. Strepsirrhini are the primitive primates. The light green color वाला line है, primitive primates. Infraorder is Lemuriformes. All lemurs and lorises belong to this category. Then super family is Lemuroidea and Lorisoidea. These two are the super families belonging to Strepsirrhini group, or you can say Strepsirrhini suborder of the primate order. Lemuroidea जो है, these animals are found in Madagascar and Komodo Islands. These days they are restricted to that place nowadays. In other places lemurs are extinct. So lemurs में कौन कौन से हैं? ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रहा है ना? पहले एक ओवरऑल देख लेते हैं, फिर एग्जांपल हम आपको बताएंगे। स्ट्रेप हैप्लॉइड प्राइमेट के दो सब ऑर्डर, स्ट्रेप्सिरिनी, हैप्लोरिनी। हैप्लोरिनी में इंक्लूड कर लिया गया टार्सीफॉर्म्स को, और एंथ्रोपॉइडिया ये भी आपका इंफ्राऑर्डर हो गया, इंफ्राऑर्डर। अब आप कलर्ड लाइन को नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड, यू कैन ट्रैक इट। सारे प्राइमेट्स में टोटल ये कलर हो गया टार्सीफॉर्म, ये रेड वाला लाइन इज टार्सीफॉर्म, ये सेपरेट हो गया, फर्दर इसमें ब्रांचिंग नहीं है। ओके, ये लाइट ग्रीन स्ट्रेप्सिरिनी प्रिमिटिव प्राइमेट्स, लेमुर्स एंड लॉरिसेस। फिर देखिए ये तीन कलर चला फिर इधर एंथ्रोपॉइडिया में, येलो, ब्लू एंड डार्क ग्रीन। तो एंथ्रोपॉइडिया इज in this group, all monkeys and apes are there. Apes में नॉन ह्यूमन एप्स भी है एंड ह्यूमंस। तो अगर लिखना होगा कहीं तो ह्यूमन को अलग से लिखिएगा, ठीक है? ऑल्दो ह्यूमन इज ऑल्सो एन एप, लेकिन आप लिखोगे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। एप के अंदर भी कैटेगरी है ह्यूमनॉइड्स, ठीक है? और एप के ऊपर है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड में हो गया मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमनॉइड में है फिर एप्स एंड ह्यूमंस, एंड देन उसके बाद ह्यूमंस। तो एंथ्रोपॉइडिया को भी दो डिवीजन है, प्लेटिरिनी एंड कैटिरिनी। प्लेटिरिनी पूरा न्यू वर्ल्ड मंकी है, पार्व ऑर्डर, एंड कैटिरिनी में है आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। अब देखिए यहां पर येलो लाइन को आप नोटिस करेंगे तो येलो लाइन इज बिलोंगिंग टू मंकीज। सो यू कैन सी हियर एक न्यू वर्ल्ड मंकीज, येलो लाइन, सिर्फ येलो लाइन ही जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दो क्लेड में। एक्चुअली यहाँ भी एक ग्रीन, लाइट ग्रीन लाइन इज डिवाइडिंग इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है? यहाँ भी आप देखिए येलो लाइन भी जो है डिवाइड हो रहा है टू ग्रुप्स में, क्योंकि ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो गया इनका एडेप्टिव रेडिएशन। तो प्लेटिरिनी, कैटिरिनी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, कैटिरिनी हो गए। पहले प्लेटिरिनी को देखो, प्लेटिरिनी में सुपर फैमिली एटिलॉइडिया, ऑल न्यू वर्ल्ड मंकी, और भी सुपर फैमिली है वो एक्सटिंक्ट हो गया।
एक ही सुपर फैमिली जो है लिविंग है। एंड इन दिस सुपर फैमिली एटिलोइडिया देयर आर 3 फैमिलीज, पिथेसिडी, सीबीडी एंड एटिलिडी। पिथेसिडी में है साकीज, टीटीज एंड उआकरीज, दिस टाइप ऑफ मंकीज। सीबीडी में है स्क्विरल मंकी, ओल मंकी एटसेट्रा। एटिलिडी में है हॉलर मंकी, स्पाइडर मंकी, ऊल मंकी, ये सब है एटिलिडी। ठीक है, तो ये हो गए टोटल पिथीसीडी, सीबीडी, एटिलिडी, ये हो गए न्यू वर्ल्ड मंकीज। याद रखने के लिए आप देख लो कैप, सीबीडी, एटिलिडी एंड पिथी। लेकिन इसमें आप देखो सीबीडी एंड एटिलिडी बिलोंगिंग टू वन क्लैड, बाद में दोनों का अलग, तो उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है आपके सिलेबस के लेवल पर इसमें। फिर देखिए एंथ्रोपोइडिया में कैटरीनी हो गया, जिसमें ओल्ड वर्ल्ड सब है इंक्लूडेड। ओके, सो अब देखिए येलो वाला मंकी जो है ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बिलोंगिंग टू सुपर फैमिली सर्कोपिथिक्वाइडिया, एंड अनदर सुपर फैमिली इज होमिनोइडिया। इन होमिनोइडिया एप्स एंड ह्यूमंस आर देयर। अब होमिनोइडिया में देखिए 2 कलर चल रहा है, ब्लू एंड डार्क ग्रीन। आप याद रखिए डार्क ग्रीन जो है वो हम लोग हैं, ह्यूमंस। यहाँ पर डार्क ग्रीन इज ह्यूमंस। होमिनोइडिया में फिर आपका है 2 फैमिली लेवल पर, 2 फैमिली आर देयर। एक में है हाइलोबेटिडी, इसमें गिबोन एंड सियामांग्स हैं। एक सियामांग्स भी जो है गिबोन का ही एक स्पेशल टाइप ऑफ गिबोन ही है। आप जैसे समझिए कि हाइलोबेटिडी में सारे गिबन्स हैं। सियामांग्स जो हम दिखाएंगे अभी आपको, सियामांग्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ गिबन है। एंड अब देखिए होमिटिडी में ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, होमिनिडी आपका फैमिली है, और सब फैमिली है पोंगिनी, गोरिलिनी एंड होमिनिनी। उसके बाद दीज 2 आर ट्राइब्स, ब्लू कलर अलग हो गया, ये आपका आगे these kinds of apes, orangutans and gorilla, and now green color hominini, चिंपैंजी। होमिनिनी में ब्लू और ग्रीन दोनों है, यानी होमिनिनी में चिंपैंजी और बोनोबोस एंड ह्यूमंस। देन अगेन होमिनिनी is divided into पानिनी एंड होमिनिनी। पानिनी जो हो गया आपका जीनस, सॉरी पानिनी ट्राइब एंड होमिनिनी ट्राइब। पानिनी ट्राइब में पैन जीनस, होमिनिनी में होमोजीनस। So this is the classification of आपका प्राइमेट्स। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। मैंने फॉर्मूला भी बना सकते हो, मैं भी बना दूंगा फॉर्मूला, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इस ग्रुप में एक एक करके। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? Yes, sir. शुरू करते हैं स्ट्रेप्सिडीनी से। सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडीनी। स्ट्रेप्सिडीनी में इंफ्राऑर्डर लेमुरिफॉर्म्स। फिर सुपर फैमिली लेमुराइडिया में क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ लेमर्स आर इन दिस ग्रुप, लेमुराइडिया सुपर फैमिली में। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. कैसे इसको लगाऊं?
इसका फोटो 1 सेक। अब आप देखिए इसको, लेमर्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शंस। अभी टोटल 113 स्पीसीज है लेमर्स में आपका, ठीक है। आपका स्ट्रेप्सिरिनी में, लेमोरिफॉर्म्स में, लेमुराइडिया में। हम लेमुराइडिया पढ़ रहे हैं अभी, सुपर फैमिली, इसमें सारे लेमर्स हैं। तो लेमर्स 103 लेमर मेडागास्कर में है और कुछ स्पीसीज मेडागास्कर के बाहर है। टोटल 113 स्पीसीज है, जिसमें से 107 जो है दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट। देखिए कौन कौन से रिंग टेल्ड लेमर, इसके टेल में देखिए रिंग है, बैंड है, ब्लैक व्हाइट, इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया। दिख रहा है आपको रिंग Yes, sir. टेल? Yes. ये फल फ्रूट पत्ते पेड़ की छाल ये सब खाते हैं। ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है, मेडागास्कर में मिलता है रिंग टेल्ड। ओके, अब देखिए रेड रफ, ये भी मेडागास्कर में है। रेड रफ्ट लीव सीड्स नेक्टार, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ही कम मेंबर्स बचे हैं। 2-4-10 साल में ये एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता इसको एक्सटिंक्ट होने से। इंडिडी, ये भी मेडागास्कर में है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखिए मोरोहिटा माउस लेमर, दिस आल्सो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब वो अब करीब करीब एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। व्हाइट बेल्टेड रफ्ट, ये भी एक्सटेंशन पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेटर बैम्बू और क्राउन सिफाका, ये भी एंडेंजर्ड है। जो कल हम आपको फोटो दिखाए थे मेडागास्कर लीमर, यही यही इसी का फोटो था मेडागास्कर। वैसे सब ये सब मेडागास्कर से ही बिलोंग करते हैं। ब्लैक लेमर, so this is endangered critically endangered है great bamboo, white belted sir, these are the few examples which are critically endangered lemurs. Now I'll come to second group. सर एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस रिवाइव नहीं करा सकते स्पेसिएशन से? नहीं बाबू, कैसे वो आएगा फिर डी एक्सटिंक्शन? नो, आपका विज्ञान इतना अभी तरक्की नहीं किया है, वो सब अभी फिक्शन है, स्टोरी है, जो आप डायनासोर जुरासिक पार्क मूवी में देखे। ओके, यस सर, Not possible. जीनोम एडिटिंग। It is not possible to create life. You can only reproduce life. You cannot create life. That is why once the animals went into extinction, they cannot come back. Billions of years का आप देख रहे हो इतना इवोल्यूशन होकर के वो एनिमल में स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एडेप्टेशंस हैव डेवलप्ड. Now because of the human activities, you have lost it. So कितना बड़ा लॉस होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप और स्पीसीज के एक्सटिंक्ट हो जाने की वजह से, आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड सुपर फैमिली में आते हैं लेमर्स के, स्ट्रेप्सिरिनी सब ऑर्डर में ही, लॉरिसॉइडिया, ठीक है। लॉरिसॉइडिया में भी आपका करीब करीब इसमें सारे लॉरिसेस हैं, ऑल लॉरिसेस, 25 स्पीसीज है इसके अंतर्गत। काफी सारे एक्सटिंक्ट हो गए, इसमें भी बहुत सारे एक्सटिंक्शन के कगार पर है। और इस सब की वजह यह नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट ये लोग, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल इसके लिए जो है, जो पॉपुलेशन, वो चाइनीज है, वो बंदर को पका पका के खाते हैं खूब। ह्यूमंस, they eat them, they prey them, they predates them,
दैट इज वाई। अब देखिए लॉरिस फॉर्म में ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Sir. So there are two types of lorises: slow loris, slender loris. मेजॉरिटी ये दो तरह के हैं, लेकिन एक बुश बेबीज जो है वो भी लॉरिस ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है। सम ऑफ द लॉरिसेस दैट आई हैव शोन यू हियर, क्योंकि टोटल 25 स्पीसीज है। ये 25 तो हम दिखाए नहीं आपको, सब स्पीसीज दिखाना संभव नहीं है। ओके, तो हम कुछ कुछ दिखा रहे हैं। वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दिस टाइप ऑफ लॉरिसेस आर, एंड वेयर दे आर फाउंड, वेयर दे आर फाउंड लॉरिसेस। आप पूछते नहीं हो कि कहाँ मिलता है सर ये लोग लॉरिस। हम लॉरिस देखना चाहें तो कहाँ पर जाएं, कौन सा जंगल में जाएं? ऑब्वियसली जंगल में ही रहता है, शहर में तो रहेगा नहीं, सब जानवर है। ओके, सो ये सब आपका म्यांमार ओरिएंटल रीजन जो है, ओरिएंटल रीजन कहते हैं आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ओके, और इवन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द बोर्नियो आइलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपके जो है सो लॉरिसेस है। तो सम ऑफ द लॉरिस, स्लो लॉरी बहुत ही स्लो होता है, नॉक्टर्नल होता है, पेड़ पर ही रह जाता है जिंदगी भर। एंड देखिए फिलीपाइन स्लो लॉरिस, ये वल्नरेबल है, एक्सटिंक्शन होने की कगार पर है। पिग्मी स्लो लॉरिस, ये भी एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्लो लॉरिस, बंका स्लो लॉरिस, कायन लिवर स्लो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्लो लॉरिस हैं, और उनके आइलैंड जहां पर वो पाए जाते हैं उसके नाम पर भी कुछ कुछ, जैसे सुमात्रन है, ये इंडोनेशिया में है, जावन है इंडोनेशिया, मलेशियन है, दिस वन जावन इज इंडोनेशियन। इंडिया में भी मिलता है, बंगाल स्लो लॉरिस नाम है उसका, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, असम में, मणिपुर, नागालैंड, वहां पर बंगाल स्लो लॉरिस इसका नाम दिया गया है। स्लेंडर लॉरिस, ग्ले स्लेंडर लॉरिस, ये भी एंडेंजर्ड है, रेड स्लेंडर लॉरिस। ओके, so these are the lorises. Bush babies also belong to this category. ठीक है, देखिए इंडिया में जो लॉरिस मिलता है वो है आपका ये बंगाल स्लो लॉरिस। दिख रहा है ये फोटो आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा एनिमल कोई देखा है आसपास? नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये No, भी sir. इंडेंजर्ड है ये। ओके, और इसको वहां मणिपुर, नागालैंड में मार के खाते हैं इसको, इंडेंजर्ड हो गया। देखिए ये है बंगाल स्लो लॉरिस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ रहते हैं। ओके, ऑल इन द फैमिली। 15 years in the wild, 20 years in the captivity। 15 साल ये जंगल में जिंदा रहेगा और पिंजरा में 20 साल जिंदा रहेगा। वल्नरेबल है। ओके, so this is decline in the population is attributed to illegal pet trade and medicinal market। ये इलीगल पेट ट्रेड और मेडिसिनल मार्केट आपका कहां पर है? चाइना में है। Increasing habitat destruction due to deforestation, hunting and poaching become roadkill with increased traffic। तो ये हो गया आपका बंगाल लॉरिस। अब हम आ रहे हैं, स्ट्रेप्सिरिनी का एग्जांपल देख लिए। अब आ रहे हैं हैप्लोरिनी में। हैप्लोरिनी में भी टार्सीफॉर्म हम दिखा देंगे सबसे लास्ट में, इसका नहीं लगाया फिगर, अभी खोज ही रहे थे तब तक टाइम हो गया क्लास का, सो छूट गया। अभी हम लास्ट में आपके सामने इसका फोटो सर्च करेंगे। वैसे हम कल दिखाए थे आपको टार्सी का फोटो,
ये भी साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, टार्सियस, दिस इज द टार्सियर। और ये बुश बेबी है जो लॉरिसेस है। ये लेमर था, ठीक है, ये लॉरिस है। आवाज आ रही है मेरी? इसमें कुछ ज्यादा समझने का तो है नहीं, नाम याद रखना है आपको, लेकिन हाँ सबका पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कौन कहाँ है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, और कौन कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम एंथ्रोपॉइडिया में अब मंकीज देखते हैं। पहले न्यू वर्ल्ड मंकी, प्लेटिरिनी, उसके बाद कैटिरिनी पर आएंगे। पहले प्लेटिरिनी में है सुपर फैमिली एटिलॉइडिया, अदर सुपर फैमिलीज आर एक्सटिंक्ट। सो एटिलॉइडिया सुपर फैमिलीज में देयर आर 3 फैमिलीज, पिथेसिडी, सीबीडी एंड एटिलिडी। पिथेसिडी में है साकीज, टिटीज एंड उकारिस, ये इसका कॉमन नेम है ये सब मंकी का, साकीज, टिटीज एंड उकारिस का। देखिए कैसा होता है साकी, टीटी, उकारी। देखे हो ऐसा मंकी कहीं फोटो में, डिस्कवरी पर, प्लेनेट अर्थ, ये सब चैनल, नेशनल जियोग्राफिक? No, sir. No, No, sir. देखो कैसा मंकी है, pithecelines. These are the pithecelines that represent diverse group of unusual looking primates such as the beard saki. ये है साकी मंकी, ऐसा लग रहा है कि इसको दाढ़ी है। बियर्ड साकी मंकी, ओके, ये भी साकी मंकी है, बियर्ड साकी मंकी, ठीक है। और व्हाइट फेस्ड साकी मंकी, ये व्हाइट फेस्ड है। साकी मतलब समझ लो बियर्ड, दाढ़ी है इसको। एक ब्लैक साकी है, एक व्हाइट साकी है। एक गाना भी है साकी साकी रे, उस पर समझ लो इसको। और कॉपरी टीटी मंकी, ये टीटी मंकी है, कॉपरी, कॉपर जैसा कलर का, ठीक है। सो these are not extinct, these are commonly found in the Amazon rain forests। कहाँ पर? ब्राजील में, अर्जेंटीना के ऊपर में, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, ठीक है। और ब्राजील के पीछे वेस्टर्न साइड में क्या है, उरुग्वे, वहां मिलता है। ये हो गया न्यू वर्ल्ड मंकी का पिथेसीडी फैमिली के एग्जाम्पल्स, साकीज एंड टीटीज, याद रख लीजिएगा। सीबीडी में है स्क्विरल मंकी, ओल मंकी, सेकेंड फैमिली ऑफ प्लैटिरिनी में सीबीडी। देखिए सीबीडी का एग्जाम्पल ये है आपका स्क्विरल मंकी। ये मंकी गिलहरी की तरह थोड़ा दिखने में लगता है, इसलिए इसका नाम स्क्विरल मंकी रखा गया, कॉमन नेम। दिख रहा है आपको? Yes, sir. स्क्विरल मंकी। Yes, sir. अब देखिए एक हम आपको दिखाते हैं ओल मंकी, इसी का भाई है। ये मंकी उल्लू की तरह दिखने में लगता है, yes, sir. Yes. Owl monkey and squirrel monkey. These two types of a monkey are belonging to CBD family of Platyrini. तो इसका एग्जांपल कॉमन नेम्स याद रख सकते हैं? हाँ याद रख लो, एक दो कॉमन नेम सबका याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। जूलॉजिकल नेम जो है एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। जो इस जूलॉजिकल नेम कब एक्सपेक्टेड है? जूलॉजिकल नेम तब एक्सपेक्टेड है आपको जानना जब सपोज करो आप प्राइमेटोलॉजिस्ट बन गए, प्राइमेट पर स्टडी करने वाले प्राइमेटोलॉजिस्ट, तब आपको सबका जूलॉजिकल नेम, अब प्राइमेट्स में बहुत सारे स्पीशीज है, लेकिन मोटा मोटी जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा इसका।
लेकिन जब आप ऊपर से पढ़ रहे हो तो कॉमन नेम इज सफिशिएंट। ठीक है, तो CBD हो गया। अब देखिए प्लेटिरिनी में आपका थर्ड फैमिली जो है दैट इज एटिलिडी। एटिलिडी आप देखें, एटिलिडी में है स्पाइडर मंकी। ठीक है, ये स्पाइडर जैसा इसका है, दिखता नहीं है स्पाइडर, स्पाइडर मतलब तो मकड़ी होता है, बट बिकॉज ऑफ द हेयर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी, मकड़ी का जाला जैसा हेयर सब आपस में गुच्छा गुच्छा जैसा उलझा रहता है, इसलिए